Hello student, I am Varun Kumar Rishad from LPM Public School. In this video, we will be doing some questions from page number 19 that has been mentioned on the board. And dear student, we are completing the chapter 5 of all aspects discussed one by one. हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर 5, सारे टॉपिक को डिस्कस क्लियरली डिस्कस कर लिया है. एंड ऑन दिस बेसिस वी विल डूइंग सम क्वेश्चंस. So question is, first question, you can correlate your NCERT page number, that is page number 19. The questions: how could the modern periodic table remove various anomalies of Mendeleev periodic table? Mendeleev period, if you recall the Mendeleev periodic table, I want to write here, how could the modern periodic table remove various anomalies? Questions: how could the modern periodic table remove various anomalies of Mendeleev periodic table, Answer: very simple answer, dear student. If you recall the anomalies of Mendeleev periodic table, anomalies same, contain the same box. It contained the, he was set the element in the one box contained two elements, and he arranged the arrange the element on their basis on their increasing atomic masses. But we are very well known about that the fundamental properties of any element is correlate mostly with their increasing atomic number. That is has been given by Henry Moseley in 1930. But these anomalies, how will we remove? It is simply removed. If you recall that in modern periodic table, we will see the in one period from going to left to right, only one into their increasing atomic number, the only one element are placed in a one box. But here is how it can be removed. The potassium and then second series, that is copper. And copper is a transition metal and potassium is a alkali metals. Potassium alkali metal है, copper transition metal है. तो जो नेचर है, और आप सब पढ़ चुके हैं कि एक ग्रुप के सारे एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं. अब इस ग्रुप में क्या है, फर्स्ट ग्रुप में ही पोटेशियम है, फर्स्ट ग्रुप में भी कॉपर है. तो पोटेशियम एक अल्कली मेटल है, कॉपर एक ट्रांजिशन मेटल है. तो मेटल दोनों है, लेकिन इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है, इनका जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है. इनका जो एटॉमिक मास है वो इनका जो अलग अलग जो भी इनकी प्रॉपर्टीज है वो टोटली डिफरेंट है. बिकॉज बोथ आर द मेटल बट दे आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट इन ईच अदर ऑन देयर एक्टिविटीज. तो ये कैसे रिमूव होगा? अगर आप अरेंज करिए ऑन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. अगर किसी भी एलिमेंट को, इसका आंसर क्या होगा? इफ वी अरेंज, वी कैन रिमूव द anomalies of Mendeleev periodic table by arrange the element into their increasing atomic number. ये increase, अगर elements को हम उनके increasing atomic number के according उनको arrange करते हैं, the all anomalies get removed of Mendeleev periodic table. Due to, answer is due to
remove due to place the element on their increasing atomic masses. So in this way we can remove the anomalies of Mendeleev periodic table. Now the question number next question. So dear student, next question is name two elements you would expect to show chemical reactions similar to magnesium. What is the basis of your choice? आपकी चॉइस क्या हो सकती है? देखते हैं. Name the two elements you would expect to show chemical reaction similar to magnesium. अब सिमिलर मैग्नीशियम से कैसे सिमिलर होगा? कोई एलिमेंट किसी से सिमिलर नहीं था, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ग्रुप में सारे के सारे एलिमेंट जो है सिमिलर है. तो मैग्नीशियम की बात चल रही है, मैग्नीशियम का पूरा सिमिलर बना देते हैं. पूरा क्या मैग्नीशियम का है? देखिए मैग्नीशियम स्टार्ट होता है बेरिलियम से, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम, उसके बाद और भी एलिमेंट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. बेरिलियम का होता है 2, इसका होता है 12, इसका होता है 20, इसका होता है 38. सिमिलरिटी देख लेते हैं क्या सिमिलरिटीज में है. देखिए 2 सॉरी इसका 2 नहीं होता है, 4 होता है. तो 2 2 2 8 2 2 8 18 2 सॉरी 2 8 18 8 2 काउंट कर रही है 38 होगा. ये देखिए 10 18 28 एंड 20 एंड 10 जो है 38 के बराबर हो जाएगा. लेकिन आप देख रहे हैं सबकी सिमिलर प्रॉपर्टी है 2 2 2 2 सिमिलर प्रॉपर्टी है. कोई भी किसी का भी ले सकते हैं. सब में कितना सब लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है. सबका कितना होगा? +2 +2 +2 +2. किसी का भी कोई एलिमेंट ले सकते हैं. कौन कौन ले सकते हैं? मान लीजिए आपने दोनों ले लिए. इसमें दिया है नेम टू एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम. व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर चॉइस? कोई चॉइस ले सकते हैं. 2 ऊपर का ले लीजिए, ऊपर का तो एक ही है, वो नहीं ले सकते हैं. ये नीचे का ले लें, तो नीचे का अगर ले लें तो नीचे का हमको ये मिलेगा, तो ये मिलेगा क्या? दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है. +2 कैल्शियम का भी +2 है, स्ट्रोंशियम का +2 है. दोनों अगर किसी से भी रिएक्शन करते हैं, सपोज दैट मैग्नीशियम ने रिएक्शन किया क्लोरीन से, तो मैग्नीशियम क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा. लेकिन कैल्शियम करेगा तो क्लोरीन से क्या बनाएगा? CaCO ग्रुप बनाएगा डेफिनेटली. और स्ट्रोंशियम करेगा तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड बनाएगा. तो आपकी चॉइस के हिसाब से अगर आप पूरा पीरियड पढ़े हैं, पूरा ग्रुप पढ़े हैं, कोई जरूरत नहीं है. लेकिन आप पूरा ग्रुप, पूरा 18 ग्रुप पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप 3 ग्रुप पढ़ लीजिए. तीनों ग्रुप में आप देखेंगे कि जितने भी ग्रुप के एलिमेंट हैं सिमिलर, एक ही ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, भले उनके एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक मास एक दूसरे से हैवी हैं, एक दूसरे से मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इंक्रीज होता है उनका एटॉमिक मास, उनका एटॉमिक रेडिया ही बढ़ता है. लेकिन जो इनका जो प्रॉपर्टी है, इनका केमिकल प्रॉपर्टी है, रिएक्टिव प्रॉपर्टी है, वो क्या है? सेम है. तो इसी हिसाब से नेम द 2 एलिमेंट्स यू वुड expect to show chemical reaction similar to magnesium. ये मैग्नीशियम सिमिलर टू मैग्नीशियम बिल्कुल है सिमिलर. Cl2 बना रहा है, BeCl2 बना रहा है, BeCl2 बना रहा है. तो ग्रुप के एलिमेंट ही बना सकते हैं सिमिलर बना रहे हैं. सो इन दिस वे वी कैन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. तो बेसिस आपके चॉइस के बेसिस पे क्या करेंगे? कैल्शियम क्लोराइड एंड स्ट्रोंशियम क्लोराइड. ये आप समझ सकते हैं. कैल्शियम का 20 होता है, स्ट्रोंशियम का 38 होता है. 2 8 18 8 2. कुछ और नहीं है, ये कॉमन मैंने दिया हुआ है. सो आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ नेक्स्ट
Also, next question, that is third question. Name 3 elements that have single electron to their outermost shell. ऐसे 3 एलिमेंट का नाम बताइए जिनके आउटरमोस्ट सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। इनके केस में क्या है? इनके केस में आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये पूछ रहा है 3 एलिमेंट्स दैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट सेल। उनके आउटरमोस्ट सेल में ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दैट इज take the example of another element. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, नेम 3 एलिमेंट दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट सेल। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंपल सी बात है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट उठा लीजिए। ग्रुप एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, या फिर पोटेशियम दे सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन तो एक हो जाएगा, लिथियम 3 11 1 होगा, 2 1 होगा, 2 8 1 होगा। पोटेशियम का ले लेंगे 19 होता है, 2 8 18 1 2 8 18 1। इनके आउटर मोस्ट सेल में कितना है? तो आउटर मोस्ट सेल तो इनका यही है, सिर्फ के एल। ये क्या है? के एल एम। इनका आउटर मोस्ट सेल क्या है? के एल एम एन है। तो के एल एम एन, इनका आउटर मोस्ट सेल चेंज हो रहा है, लेकिन लास्ट में क्या मिल रहा है? 1d1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 के बदले 4 आपने देख लिया, 1 2 3 4। आपने 4 एलिमेंट्स का एग्जांपल देख लिया। 3 एलिमेंट्स दैट हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट सेल, 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट सेल। अभी आपने रिसेंटली देखा हुआ है कि आप बेरिलियम का, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम का आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि उनके लास्ट सेल में जो उनके लास्ट सेल था वो क्या था? अगर स्ट्रोंशियम का अगर आपको याद हो, स्ट्रोंशियम का होता है 38, उसका होगा 2 8 18 8 2। तो लास्ट सेल में कितना है इसका? 2 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम अगर देखेंगे तो बेरिलियम का 4 होता है 2 2। तो कितना हो जाएगा? ए एल एम एन ओ। इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। 3 एलिमेंट्स विथ फिल्ड आउटर मोस्ट सेल। ऐसे 3 एलिमेंट का नाम बताइए उनका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो। देखते हैं आउटर मोस्ट सेल किनका कंप्लीट होता है? इनका तो कंप्लीट नहीं, इनका कंप्लीट नहीं है इनका। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो? देखते हैं। Three elements with filled outermost cell. 3 elements with filled outermost cell. outermost cell उनका कंप्लीट हो, फुलफिल। एग्जाम्पल लेते हैं, हीलियम 2 4, नियॉन 10 20, आर्गॉन। नेक्स्ट देखिए, के जो होता है, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, फुलफिल है। इसका कितना होगा? 2 8, यानी के और एल है। इसका कितना होगा? 2 8 8 के एल एम। डिस्ट्रीब्यूट आप समझते हैं यहाँ पे कि के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 2, एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 8 और एम में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 18 और एन में होता है 32।
बट एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप यहाँ देखेंगे कि 8m में जो है 80 नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। किसी भी अकॉर्डिंग टू द लॉविस एंड कॉशन in 1916 give the law of octet configuration. ऑक्टेट में क्या होता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में मिनिमम उसकी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कंप्लीट ऑक्टेट होने के लिए उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? दे नीडेड 8 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में है, इट विल बी नोन एज फुलफिल ऑक्टेट, वो उसका ऑक्टेट फुलफिल माना जाएगा। So it will be the considered fulfilled octet. So octet complete है, ये भी complete है, ये भी complete है। क्रिप्टॉन का होता है 33, 2, 8, 18, 8 हो जाएगा ये, आसानी समझ सकते हैं। 2, 8, 10 हो जाएगा, 18, 28 हो जाएगा, 28, 36 हो जाएगा। तो लास्ट में क्या मिल रहा है? 18। ये होता है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन एक क्या है? जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। तो ये जो है इनको क्या बोलते हैं? that we are called these are the noble gases। ये नोबल गैसेज हैं। और ये पूछा है कि नेम द 3 एलिमेंट विच आउटर मोस्ट सेल आर गेट फुलफिल। इनका फुलफिल है तो इनका जो के की कैपेसिटी होती है तो इसमें फुलफिल है। इसमें एल होता है, एल में 8 होता है, एल में 8 है, यहाँ एम है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन किसी में होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में तो फुलफिल माना दैट 8 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप इट इज क्लियर, ये आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। अनदर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल मेटल्स दैट रिएक्ट विथ वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इज देयर एनी सिमिलरिटी इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स? एनी सिमिलरिटी ऑफ एटम ऑफ दीज एलिमेंट्स? यस। क्या सिमिलरिटी है बताइए। वैसे आप समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल मेटल्स दैट रिएक्ट विथ वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इज देयर एनी सिमिलरिटीज इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स? इनकी क्या सिमिलरिटीज है? लिथियम का, लिथियम किससे रिएक्ट करता है? वाटर से। और कौन है? सोडियम, सोडियम किससे रिएक्ट करता है? वाटर से। और क्या रिएक्ट कर रहा है? पोटेशियम, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, 2 ऑक्सीजन है, बिल्कुल दोनों ऑक्सीजन है। सॉरी, ये नहीं होगा यहाँ, H2 गैस होगा। आप कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। ये लिथियम हाइड्रोक्साइड बना है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरिटीज क्या है? ये बेसिक नेचर का होगा, ये भी बेसिक नेचर का होगा, ये भी बेसिक नेचर। बिकॉज दीज आर द अल्कली मेटल एंड दे हैव +1 +1 +1। एंड अगर आप इस तरह से कोरिलेट करने की कोशिश करें तो लिथियम का होता है +1 और ऑक्सीजन का, हाइड्रोक्साइड का होता है -1, तो -1 ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सोडियम के केस में, पोटेशियम के केस में भी
रिएक्शन आपका इक्वल है, 4 हाइड्रोजन तो 2 तो 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस तरह से ये बेसिक नेचर के होंगे। तो बेसिक नेचर अल्कली जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए दैट इज कॉल्ड अल्कली, सो दैट्स व्हाई वी हैव अल्कली। वो दीज 3 एलिमेंट्स आर अल्कली, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। Helium is unreactive gas and neon is gas extremely low reactivity. What if anything do their atoms have in common? इनके हीलियम इज अनरिएक्टिव गैस। देखिए जो भी रिएक्टिवनेस होता है मेटल एलिमेंट्स में, तो वो किसकी वजह से होता है? फॉर देयर फुलफिल देयर आउटर मोस्ट ऑक्टेट और डुप्लेट। जो कुछ भी एलिमेंट रिएक्शन करता है वो अपने आउटर मोस्ट सेल को या अपने ऑक्टेट को या अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन से लूज गेन शेयरिंग करता है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।